I'm Vandan and we are learning English grammar of class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is the book Grammar Pinnacle. Let's move on to chapter number 28, which is paragraph writing. So for writing an imaginative composition, अगर आप एक imaginative composition लिखना चाहते हैं, you should be a habitual reader. आपकी जो reading habit है वो होनी चाहिए. You should also learn to question the how, when, where and why of everything. हर चीज के बारे में आपको क्वेश्चन पूछना है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ. And remember that your description should be drawn from real life. आपका जो description है वो real life से related होना चाहिए. Do not turn characters into unreal creatures. Characters को unreal creatures में ना convert करें. और आपकी जो स्टोरी लाइन है वो उसमें एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक मिडिल होना चाहिए और एक कंक्लूजन होना चाहिए. सो द इंट्रोडक्शन शुड कैच द रीडर्स अटेंशन. इंट्रोडक्शन ऐसा हो कि जो रीडर है उसका अटेंशन कैच करे वो. जो कंक्लूजन है, इट मस्ट रिलेट योर आइडियाज एंड यू हैव टू कंप्लीट द स्टोरी इन द बॉडी इटसेल्फ. बॉडी में ही हमें स्टोरी को कंप्लीट करना है. Paint a vivid and colorful picture for the readers. Readers के लिए एक बहुत ही vivid और colorful picture आपको paint करनी है. And remember to divide your composition into paragraphs. अपने composition को paragraphs में जरूर divide करें. Imaginative composition can be of many kinds. कई चीज होती है कि हम imagine करके लिखते हैं, तो ये कई सारे तरीकों के हो सकते हैं. Place yourself in the position of the another person और ऑब्जेक्ट एंड देन नरेट और डिस्क्राइब द इवेंट. अपने आप को जो है उस पर्सन की जगह रखें, उस ऑब्जेक्ट की जगह रखें और फिर जो है डिस्क्राइब करें उस पूरे इवेंट को. द टॉपिक्स कैन बी टॉपिक्स हो सकती हैं एंड ऑटोबायोग्राफी, एनी स्टोरी, स्टोरीज विथ गिवन आउटलाइंस एंड एसेस. सो ये सारे टॉपिक्स आ सकते हैं इसके अंदर. So here is a sample of imaginative composition. एक imaginative composition का एक sample दिया है जिसमें the topic is if I were invisible. अगर मैं invisible होता. So यहाँ पे हमारी जो story है वो ऐसे शुरू होती है, paragraph ऐसे शुरू होता है, if by chance I were to become invisible. अगर मैं invisible हो जाता, I would be very happy for many reasons. बहुत सारे reasons के लिए मैं happy होता. It would be a dream come true for me. मेरे सपने सच हो जाते. And I have always wanted to do many things and visit places far away. मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ, दूर दराज की जगहों पे घूमना चाहता हूँ. I haven't had the chance to do so or have not been allowed because of my age. और मुझे वो सारी चीजें जो है नहीं करने को मिली क्योंकि मेरी एज कम है. So being invisible would allow me the freedom to go anywhere. अगर मैं invisible हो जाऊं तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ. I would be able to see everything without anyone knowing. मैं हर चीज देख पाऊंगा, कोई मुझे समझ नहीं पाएगा कि मैं वहां पे हूँ. I would walk freely into the homes of our leaders. Leaders के घर में मैं आराम से घूमूंगा and see how they work and make decisions that affect our lives. वो कैसे decisions को लेते हैं जो हमारी life को affect करते हैं. I would visit famous places and see all the wonders and beauty of our world. मैं जो है पूरी दुनिया घूमना चाहूँगा और सारे wonders को देखना चाहूँगा, उनकी खूबसूरती को देखना चाहूँगा. I would travel by air, water and land without paying a single rupee. मैं air से जाऊँगा, मैं water से जाऊँगा, मैं land से जाऊँगा और एक भी रुपये नहीं दूंगा. No one would be able to see me. कोई मुझे देख नहीं पाएगा and I would have a wonderful time. और मेरा समय बहुत ही अच्छा होता. Walking past all the security checkposts, what a fun it would be. सारे security checkposts से मैं आसानी से घूमता फिरता चला था और कितना मजा आने वाला था. I would have an advantage over my enemies as I could sneak into their camps, destroy all their weapons and then inform my country about it. मेरे पास एक advantage होता कि मैं अपने enemies के कैंप में घुस जाता, उनके सारे weapons खराब कर देता और फिर अपनी कंट्री को इन्फॉर्म कर देता. I would be considered perfect for my act of bravery and would be awarded a medal of honor. मुझे अपनी ब्रेवरी के लिए अवार्ड मिलते, मेडल्स मिलते. तो ये आपका बॉडी खत्म हो गया. अब जो आप देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ आता है,
In school I would be able to do many things too. School में मैं बहुत सारी चीजें कर पाता. If I were invisible, I would be able to see the secret places where our class bully hides all the things he took from us. अगर मैं इनविजिबल होता तो मैं उस सीक्रेट प्लेस पे जाता जहां पे मेरे क्लास का जो बुली है वो सारी सीक्रेट चीजों को छुपा देता है जो हमसे लेता है. I would also be able to find out if any children cheated without the teacher's knowledge. और मैं ये भी जान लेता कि कहीं कोई बच्चा टीचर की नॉलेज के बिना चीटिंग तो नहीं कर रहा है. And I could then inform the teacher, और फिर मैं टीचर को इन्फॉर्म कर देता. So ऐसे हमने अपना पैराग्राफ कंक्लूड कर दिया. So here comes workout. You have to write imaginative composition on the given topics with the help of the hints. Hints दिए हैं और इन hints के बेसिस पे आपको पैराग्राफ्स लिखने हैं. तो पहला है एन अनफॉरगेटेबल ड्रीम. सो हिंट क्या है? व्हेन डिड द ड्रीम अकर, whom did you share it with, describe the dream, how did you feel, what happened when the dream ended. सो ऐसे आपको एक जो पैराग्राफ लिखना है. नेक्स्ट है अ बिजी स्ट्रीट सीन. सो यहाँ पे एक बिजी स्ट्रीट के बारे में आपको डिस्क्राइब करना, उसको कैसे. यहाँ पे बहुत सारे एडजेक्टिव्स दिए जैसे कि लार्ज, बिजी, क्लीन, डर्टी, ओल्ड, मॉडर्न, सेफ. ये सारे एडजेक्टिव्स लिख सकते हैं आप. जो है व्हीकल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्लेसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड वन इज अ मैजिकल फोटोग्राफ. यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ को डिस्क्राइब करना है, इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है जो भी इस फोटोग्राफ में लिए गए हैं. एंड हाउ डिड द फोटोग्राफ बिकम मैजिकल. वो फोटोग्राफ मैजिकल कैसे बना, डिस्क्राइब करना उस मैजिक को जो कि क्रिएट किया गया था उसमें. And different things that are mentioned here, these points you have to use, and then you have to write an imaginative composition. Next, B exercise. Here are some more topics for you to practice your writing skills. कुछ और topics दिए जैसे कि पहला है the fictional character I would like to meet. कौन से fictional characters आप मिलना चाहते हैं. दूसरा, if trees could talk, अगर पेड़ बोल सकते, what sort of things would they have to say. वो क्या क्या चीजें बोलना चाहेंगे. Imagine you see a strange light in the sky. What is it? आप इमेजिन करें कि आपको एक अचानक से जो एक स्ट्रेंज लाइट दिखती है आसमान में, क्या है वो, उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है. राइट अ स्टोरी अबाउट एन एडवेंचरस ट्रिप टू द मून. मून तक आप ट्रिप करके आए हो तो आपको एक स्टोरी लिखनी है यहाँ पे जो कि एडवेंचरस होनी चाहिए. एंड द फिफ्थ वन इज अ मशीन दैट आई वुड लाइक टू इन्वेंट. कौन सी मशीन को आप इन्वेंट करना चाहेंगे, उस मशीन के डिस्क्रिप्शन को आपको यहाँ पर लिखना है. सो दीज क्वेश्चंस यू हैव टू डू योरसेल्फ. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड इट. आई विल बी मीटिंग यू सून विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू चैप्टर. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.